معاہدہ نہ کرنے پر قیامت ڈھانے کی دھمکی، امریکی صدر نے ایران کو پیغام دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کو معاہدہ کرنے یا اپنا ہارمز کھولنے کے لیے 10 دن کا وقت دیا تھا۔ ایران کے پاس 10 دن کا وقت ختم ہو رہا ہے، 48 گھنٹے باقی ہیں۔ معاہدہ نہ کیا تو ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ امریکی صدر نے اپنے ہارمز کو کھولنے کے لیے ایران کو 2 دن کی ابتدائی ڈیڈ لائن دی تھی۔ اسی دوران ایران امریکہ مذاکرات کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو دی گئی ڈیڈ لائن میں 10 دن کا اضافہ کر دیا تھا۔ مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ایران کے موقف کو امریکی میڈیا نے غلط انداز میں پیش کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، ہم ثالثی کی پاکستانی کوششوں پر شکر گزار ہیں، غیر قانونی جنگ کے حتمی اور دیرپا خاتمے کی شرائط سے متعلق فکر مند ہیں۔ جنگ ہم پر مسلط کی گئی۔ عباس اراغچی نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ ریلی کے دوران ایرانی عوام کی جانب سے پاکستانی پرچم لہرانے کی ویڈیو بھی شیئر کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ کے بیان کا خیر مقدم۔ عباس اراغچی کی وضاحت کا شکریہ ادا کیا۔ ایکس پر بیان میں کہا، میرے عزیز بھائی عباس اراغچی، آپ کی وضاحت کو سراہتا ہوں۔ ایران کے وزیر خارجہ کی بروقت وضاحت، قیاس سرائی کسی کے لیے بھی مفید نہیں ہوتی۔ دفتر خارجہ کا ایرانی وزیر خارجہ کے ٹویٹ پر رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کی سوشل میڈیا پر زیر گردش جھوٹی خبروں کی تردید۔ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے بے بنیاد اور من گھڑت دعووں کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ میں ہونے والی بریفنگ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ ایسے امور کا حوالہ دیا گیا جو زیر بحث آئے، نہ ہی ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ علاقائی حساسیت اور نازک وقت میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے۔ میڈیا پلیٹ فارم مکمل تحقیق سے کام لیں، قیاس آرائیوں سے گریز کریں۔ امریکہ کو ایران سے جنگ مہنگی پڑنے لگی، مزید 2 قیمتی طیاروں کا نقصان۔ ایران میں تباہ کیے گئے امریکی لڑاکا طیارے F-15 کے پائلٹ کی تلاش۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایک اور واقعے میں امریکہ کے A-10 تھنڈر بولٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اب تک 7 امریکی طیارے گرائے۔ تباہ طیاروں میں F-35، F-15 ایگل اور E-3 جاسوس طیارے شامل۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے نئے فضائی دفاعی نظام کا استعمال کر کے کامیابی حاصل کی۔ ایران نے اصفہان میں ایک اور امریکی ڈرون تباہ کر دیا۔ امریکہ نے جنگ میں اب تک اپنے 13 فوجیوں کی ہلاکت اور 365 کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل کا بوشہر ایٹمی پلانٹ کے قریب ایک اور حملہ، سیکورٹی گارڈ شہید۔ صوبہ خوزستان کے شہر ماشر میں 6 پیٹرو کیمیکل پلانٹس پر میزائل برسا دیے گئے، 5 افراد شہید، کئی صنعتی یونٹس کو نقصان۔ بیلسٹک میزائل ذخیرے کو نشانہ بنانے کا اسرائیلی دعویٰ۔ تہران اور قم سمیت مختلف شہروں میں دھماکے۔ اصفہان میں ہلال احمر کا کارکن شہید۔ البرٹ صوبے کے پل پر حملے میں شہداء کی تعداد 13 ہو گئی۔ اب تک 55 لائبریریز کو بھی نقصان پہنچا۔ 24 گھنٹے میں 206 حملے، شہداء کی تعداد 2070 ہو گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں ایٹمی پلانٹ پر حملے کی صورت میں تابکاری کا اخراج ہوا تو تہران ہی نہیں، خلیجی ممالک میں بھی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر حملے بھی دشمن کے مقاصد ظاہر کرتے ہیں۔ ایران نے اشیاء ضروریہ کے جہازوں کو اپنے ہارمز سے ایرانی بندرگاہوں تک آنے کی اجازت دی تھی۔ اسرائیل اور امریکی اڈوں پر ایرانی حملوں کی نئی لہر۔ بحرین کے شمال میں امریکی پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام اور کویت میں امریکی راکٹ بیٹریوں پر میزائل برسانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے متحدہ عرب امارات میں امریکی فوج کے کمانڈ سینٹر اور تربیتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی کے دفتر پر بھی حملہ۔ اسرائیلی تجارتی بحری جہاز کو خلیفہ بن سلمان پورٹ پر کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے جنوبی، وسطی اور شمالی علاقوں میں اہم صنعتی اور فوجی مراکز پر حملے۔ رماد گان میں عمارتوں کو نقصان۔ حملوں میں 6771 اسرائیلی زخمی ہو چکے۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کی حزب اللہ سے جھڑپیں، کمانڈو بریگیڈ کا صہیونی فوجی ہلاک۔ جنوبی علاقے میں بمباری، حزب اللہ نے راکٹ اور ڈرونز برسا دیے۔ لبنانی تنظیم کا کہنا ہے اس نے اسرائیل کی گولانی بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ فوجی اڈوں اور فوجیوں کے اجتماعات پر بھی حملے کیے گئے۔
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। बसों, वैगनों, ट्रकों, मालबरदार गाड़ियों को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकली शुरू कर दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके के लिए रिलीफ की जल्द फराहमी के लिए कोशिशां हैं। मुश्किल वक्त में आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किफ़ायत जारी सादगी के इक़दामात से बचाई गई रकम को आवाम पर खर्च करेंगे। अगर वफाकी हुकूमत ये फैसला करे कि उन्होंने वक्त से पहले एक मिनी बजट लेकर आना है इस मुश्किल वक्त में जब महंगाई अरूज पर है, तो हम उस हद तक जाने के लिए तैयार है। खित्ते में जंग, बढ़ते इक़्तिसादी मसाइल, पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देने के लिए पुरआज़म। मिनी बजट लाने की सूरत में हिमायत का ऐलान। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत ने वक्त से पहले मिनी बजट लाना है तो हम इस हद तक जाने को भी तैयार है। मालूम नहीं कब तक मुश्किलात का सामना करना पड़े। जंग की वजह से पेट्रोल की कीमतों का बोझ पूरी दुनिया उठा रही है। जंग के असरात हर पाकिस्तानी महसूस कर रहा है। जंग ईरान तक महदूद नहीं रही, पूरे खित्ते में जंग की सूरत हाल है। ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। चाहते हैं ये जंग जल्दी खत्म और अमन कायम हो। पाकिस्तान जंग बंदी की कोशिशों में शामिल है। सहूनी कुव्वतें पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती। मजबूत पाकिस्तान की वजह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ एटमी प्रोग्राम है। बिलावल भुट्टो की ईरान के खिलाफ जारहियत की मसम्मत। कहा, ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग शुरू की गई। ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमला किया गया। तवानाई बचत के सिलसिले में चारों सूबों से मुशावरत का अमल तेज। सूबाई हुकूमतें चैम्बर्स और तिजारती तंजीमों से राय ले रही हैं। डिस्कोर्स से भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। बाजार, मार्केट, दुकानें, कमर्शियल जोन्स जल्द बंद करने की तजवीज़। नया शेड्यूल मुल्क की सतह पर 1 से 2 माह के लिए लागू होगा। बाजार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की तजवीज़। तमाम तजावीज़ का जायजा लेकर आइंदा हफ्ते फैसला किया जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मार्केटें जल्द बंद करने से मुतल्लिक ताजिर तंजीमों से मुशावरत कर रहे हैं। हमें दिन की रोशनी को ज्यादा इस्तेमाल करके महंगी बिजली से बचना चाहिए। तवानाई के इस्तेमाल में कौम जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफर की सहूलत जारी। पंजाब में मोटरसाइकिल मालिकान को पेट्रोल पर सब्सिडी देने के तरीकाकार का ऐलान। पंजाब भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस भी खत्म कर दी गई। रजिस्टर्ड मोटर बाइक मालिकान के लिए रिलीफ पैकेज का फौरी आगाज कर दिया गया। हर रजिस्टर्ड मोटर बाइक को 2000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। 20 लीटर पेट्रोल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। किसानों को भी महंगे फ्यूल से बचाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। 25 एकड़ तक के मालिक किसान हुकूमती सब्सिडी से मुस्तफीद होंगे। फी एकड़ 1500 रुपए माहाना तक सब्सिडी मिलेगी। हमसाये में जंग के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आवाम को सब्सिडी देने जा रहे हैं। 15 दिन के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुफ्त कर रहे हैं। बलोचिस्तान के किसानों को पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी देंगे। कोयटा और तुर्बत में ग्रीन बस सर्विस फ्री कर रहे हैं। मुशावरत के बाद पीर से मार्केटें रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। शादी हॉल्स और होटल रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। एनर्जी बहरान हमारी हुकूमत का पैदा करदा नहीं। ईरान जंग की वजह से बहरान पैदा हुआ है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बनता नहीं। एहतजाज करना है तो इसराइल और नेतन्याहू के खिलाफ करें। हाफिज नईमुर रहमान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तजावीज़ दें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया में पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। हमारे हमसाया मुल्क में पेट्रोल पंप पर फौज को बुलाना पड़ा। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। कुछ अनासर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत के खिलाफ सरगर्मियां करेंगे तो फिर आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। सियासत से ज्यादा रियासत को मुकद्दम रखना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ कोई नाराजगी नहीं।
तेल बहरान से दुनिया के तमाम ममालिक मुतासर हो रहे हैं। पूरा खित्ता पेट्रोलियम बहरान का शिकार है। हमारे हमसाया मुल्क में पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की मुसद्दिक मलिक के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरे खित्ते में तेल की किल्लत हुई, पाकिस्तान में नहीं। तेल उतना इस्तेमाल करें जितना ज़रूरत है। हुकूमत ने ईंधन की मुसलसल फराहमी का बंदोबस्त कर रखा है। आम आदमी मुश्किल का शिकार हो, ये वज़ीर आज़म को बर्दाश्त नहीं। मुसद्दिक मलिक का कहना था, जंग की तबाहकारियों से पूरा खित्ता धुंधला चुका है। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश है। महंगा तेल खरीद कर आखिर कब तक सस्ता फरोख्त किया जा सकता है? मुसलसल सब्सिडी का सिलसिला जारी रखना मुमकिन नहीं। इसहाक डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनी गुफ्तगू। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कशीदगी में फौरी कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत को उजागर किया। पाक चीन 5 निकाती इक़दाम पर भी रोशनी डाली। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा पेशरफ्त और सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आबने हॉर्मस का मामला भी ज़ेर बहस आया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के इक़दामात पर गौर। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी कतर पहुँच गई। दोहा में पुरवकार इस्तकबाल। रूसी सदर प्यूटन और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर गुफ्तगू। तुर्क सदर ने कहा, ईरान के खिलाफ हमले नाकाबिल कबूल हैं। कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए सिफारती राब्ते जारी हैं। तुर्की ईरान के इलाकाई ममालिक के खिलाफ हमलों की हिमायत नहीं करता। तुर्क सदर एर्दोगान का नेटो सरबराह मार्क रूटे से राब्ता। अमरीका ईरान कशीदगी खत्म करने के लिए आलमी कोशिशें तेज करने का मुतालबा। ईरान के शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की भतीजी बेटी समेत अमरीका में गिरफ्तार। अमरीकी हुकाम ने मुस्तकिल रिहाइश खत्म करके कासिम सुलेमानी के रिश्तेदारों को हिरासत में लिया। अमरीकी महकमा खारजा ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। बलोचिस्तान के कई इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। FC बलोचिस्तान की बारवक्त कार्रवाइयाँ चमन, कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, लूरालाई, सिब्बी और दुक्की में रेस्क्यू ऑपरेशन। FC के जवान शहरी और मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। मुतासर अफराद को खुराक और तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। मुतासरा इलाकों में आवाम की सहूलत के लिए ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स फाल कर दिए गए। FC बलोचिस्तान नॉर्थ और सिविल इंतजामिया की इमदादी काविशों पर शहरियों का इत्मीनान का इजहार। मुश्किल की इस घड़ी में बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों पर इजहार तशक्कुर।